Good morning, dear students. Today we will discuss on solution of polynomial and transcendental equation by Newton-Raphson method, which is very important method to solve polynomial and transcendental equation, right? तो सबसे पहले आइए अपन देखते हैं कि न्यूटन राप्सन फार्मूला किस तरह से अपन डिराइव करेंगे. Let f of x equal to 0 be an polynomial or transcendental equation. In this method, we choose 2 points A and B such that f of A and f of B are of opposite sign. इस मेथड से हम 2 points A and B इस तरह से चूज करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू इन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रख रही है. If f of A and f of B are of opposite sign, then the root of the equation fx equal to 0 lies between A and B. Okay. Now we find the initial approximation, and which is denoted by x naught and which is defined by A plus B upon 2. The initial approximation is x naught equal to A plus B upon 2. Let x1 equal to x naught plus h with the exact root of the given equation fx equal to 0, where h is very small. Therefore, f of x1 equal to 0. If f of x1 equal to 0, then x1 with the exact root of the given equation, and which can be written as f of x naught plus h, and which is equal to 0. Okay. So by Taylor's theorem, we have f of x naught plus h equal to f of x naught plus h into f dash x naught plus h square upon factorial to f double dash x naught plus so on equal to 0. इस तरह से टेलर्स थ्योरम की हेल्प से हमने f of x naught plus h का एक्सपेंशन कर. Here, since h is very small, so we can neglect highest power of h in above expression, and we get f of x naught plus h equal to f of x naught plus h into f dash x naught, and which is equal to 0. It can be written as f of x naught plus h into f dash x naught equal to 0. And we find h equal to minus f of x naught upon f dash x naught. Now we put the value of h in exact root of the equation, which is x1 equal to x naught plus h, and we get the first approximation. The first approximation is x1 equal to x naught plus h, and which is x naught minus f of x naught upon f dash x naught, right? Now replacing x naught by x1 and x1 by x2 in equation 1, we get the second approximation, and which is x2 equal to x1 minus f of x1 upon f dash x1. Again, replacing x1 by x2 and x2 by x3 in equation 2, we get the third approximation, x3 equal to x2 minus f of x2 upon f dash x2. In general, we get the n plus 1th approximation, and this is defined by xn plus 1 equal to xn minus f of xn upon f dash xn, where n equal to 0, 1, 2, 3, and so on. And this formula is known as Newton-Raphson formula. इस फार्मूले की हेल्प से हम न्यूटन राप्सन मेथड के द्वारा कोई भी अगर पॉलिनोमियल या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दिया हुआ है, उसका सलूशन आसानी से हम फाइंड कर सकते. अब आइए अपन देखते हैं, क्वेश्चन लेकर चलते हैं और कैसे न्यूटन राप्सन का हेल्प यूज करके
हम कोई भी अगर अलजेब्राइक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x to the power 4 minus x minus 10 equal to 0 correct to 3 decimal places by using Newton-Raphson formula। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये किस तरह का इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का हमको एग्जैक्ट रूट फाइंड करना है बाय न्यूटन राप्सन फार्मूला। तो आइए अपन सॉल्व करते हैं इसे। जो ये फंक्शन x का दिया हुआ इसे हमने f ऑफ x से डिनोट कर दिया। लेट f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस x माइनस 10, राइट। देन f डैश x क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे 4x क्यूब माइनस 1। अब हम 2 पॉइंट्स इस तरह से हमें चूज करना है कि उन पॉइंट्स पर जो सक्सेसिव पॉइंट्स हमें जो हम लेंगे उन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रख रही हो। तो यहाँ पर अपन 0 से स्टार्ट करते हैं। नाउ f ऑफ 0 इक्वल टू -10 विच इज नेगेटिव, f ऑफ 1 इक्वल टू -10 विच इज आल्सो नेगेटिव, f ऑफ 2 इक्वल टू 16 minus 2 minus 10 इक्वल टू 4 विच इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर f ऑफ x में x की जगह 1 पुट किया तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिली, और 2 पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिल गई। तो इस तरह से अपन ने देखा कि f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2 आर ऑफ अपोजिट साइन, देयरफॉर द रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2 पॉइंट्स हमें मिल गए जिन पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लग रही है। तो फर्स्ट पॉइंट को हमने a से डिनोट कर दिया, टेकिंग a इक्वल टू 1, एंड सेकंड को b से डिनोट किया एंड b इक्वल टू 2। लेट द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इज x नॉट इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, तो x नॉट इक्वल टू क्या मिल गया, 1 प्लस 2 अपॉन 2 एंड विच इज इक्वल टू 1.5। नाउ वी फाइंड f of x naught and f dash x naught। f of x naught equal to f of 1.5। तो f of x में x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1.5, तो हमें क्या मिल गया -6.4375। एंड f dash x naught equal to f dash 1.5। f dash x में हमने क्या पुट कर दिया, x की जगह 1.5 पुट किया, तो हमें f dash x naught की वैल्यू 12.5 मिल गई। अब हम न्यूटन राप्सन का फार्मूला लेंगे। बाय न्यूटन राप्सन फार्मूला वी हैव xn plus 1 equal to xn minus f of xn upon f dash xn, where n equal to 0, 1, 2, 3 and so on। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब इस इक्वेशन में हम n की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। Now putting n equal to 0 in equation 1, we get the first approximation x1 equal to x naught minus f of x naught upon f dash x naught। x naught, f of x naught और f dash x naught की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 2.015, which is the first approximation। Now we find f of x1 and f dash x1। now f of x1 equal to f of 2.015। यहाँ भी हमने x की जगह 2.015 कहाँ पर पुट किया, f of x में, तो f of x1 हमें मिल गया 4.4704। again we find f dash x1 and which is f dash 2.015। f dash x में हमने x की जगह 2.015 पुट किया तो हमें f dash 2.015 क्या मिल गया, 31.7254। now putting n equal to 1 in equation 2, in equation 1, we get the second approximation
x2 इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश x1। हमने x1 की वैल्यू फाइंड कर ली है, f ऑफ x1 की वैल्यू फाइंड कर ली है, f डैश x1 की वैल्यू फाइंड कर ली है। उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 1.87409। ये हमें मिल गया सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। नाउ वी फाइंड f ऑफ x2 which is f of 1.87409, और इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 0.46155। ओके, अगेन वी फाइंड f dash x2 which is f dash 1.87409। तो f dash x में x की जगह हमने 1.87409 पुट किया, तो ये वैल्यू हमें मिल रही है 25.3288। ओके, अब हमने x2 फाइंड कर लिया, f ऑफ x2 फाइंड कर लिया, f डैश x2 फाइंड कर लिया। अगेन हम इक्वेशन 1 में n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमें नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। नाउ पुटिंग n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट द थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश x2। हमने x2 की वैल्यू फाइंड कर ली है, f ऑफ x2 की वैल्यू फाइंड कर ली है, f डैश x2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.85587 which is the third approximation। अब यहाँ पर देखिए x2 और x3 की वैल्यू 4 डेसिमल प्लेसेस तक इक्वल नहीं मिल रही, तो हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए जाएंगे और नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए हमें f ऑफ x3 और f डैश x3 फाइंड करना होगा। नाउ f ऑफ x3 इक्वल टू f ऑफ 1.85587। तो यहाँ पर f ऑफ x में x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1.85587 और इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू मिल रही है 0.00701। Okay, again we find f dash x3 and which is f dash 1.85587। यहाँ भी हमने x की जगह f dash x में x की जगह क्या पुट कर दिया 1.85587 और इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू मिल रही है हमें 24.56445। Okay, now putting n equal to 3 in equation 1, we get the fourth approximation x4 equal to x3 minus f of x3 upon f dash x3। हमने x3 की वैल्यू फाइंड कर ली है, f of x3 की वैल्यू फाइंड कर ली है, f dash x3 की वैल्यू फाइंड कर ली है। इन वैल्यूज को हम इस यहाँ पर पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो x4 हमें मिल रहा है 1.85558। राइट, तो यहाँ पर हमने देखा x3 और x4 की वैल्यू 3 डेसिमल प्लेसेस तक इक्वल है। सिंस x3 इक्वल टू x4 इक्वल टू 1.855 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट इज x इक्वल टू 1.855। इस तरह से जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है उसका विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रैफसन फार्मूला हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, उसका एग्जैक्ट रूट फाइंड कर लिया और वो रूट हमें मिल रहा है 1.855। ओके, थैंक यू।